So, good evening, everyone. So, again, we are connected here to discuss about the Nifty technical levels. So, we are we will discuss about volume indicator along with open interest indicator. We will talk about RSI. We will talk about what would be the best strategy in this current market scenario, current market situation, and what would be the expected level in the upcoming next Nifty trading sessions. So let's talk about it without any delay. So first of all, I would like to discuss about day trading session. So what was the day trading session? What the Nifty had done? See, if we can see here, the market is open today, gap up, huge gap up, I would say. करीबन खुला मार्केट 110 point Nifty, right? And then market go down and again pull back. So the pullback, it's around from the bottom level. If I talk about, it's near about 100 points off in Nifty. So overall, the market remained positive. All indexes closed in green. If we can see here, Nifty, sorry, yes, this one, Nifty 50, Nifty Bank, Nifty Mid Cap, Nifty Next 50, Nifty 100, Nifty 200. So all indexes closed in green. So the big sign of the market bullishness. But can we observe this? This bullishness will continue, or this was the valid for the day only. I don't know about it, but we can even nobody can explain this, the data of kind of कि market क्या ये continue रहेगा या ये आज के लिए session था. Nobody can explain it, but we can observe the market next levels. If we do analyze, if we do kind of the study of the today along with trading session of the Nifty along with the different indicators. These indicators helps us to find out the way that how we can go in the upcoming Nifty levels when we are doing intraday trades. This is the important thing. That's why we do always study in this kind of video sessions. So basically this is the learning. So what FI has done today, if you can see here, 1260 करोड़ का सेलिंग, DII 1380 करोड़ का बाइंग, right? So basically I would say so there is no I would say there is no big any data. If we can pick here, pick the data and we can judge the market, we can consider the market. We cannot consider the market upon the data, on the data basis of this. FII minus 1260 crore and DIS by 1380 crore. So let's talk about other indicator as well. Yes. So the main indicator is volume. Volume risen today near about 34%. This is the big number with the market gap up, right? So again, open interest risen 2% near about. So this is the good number, I would say, not a big number, but it is a good number, right? So price is rising, volume is rising, open interest is rising, then market is strong. So now, but जो अभी recently we saw into the market kind of, I'll show you this way. So this was the last 2 day candle. आप देखेंगे पूरा रेड है दोनों, राइट? आज का एक ग्रीन कैंडल बना है,
मार्केट में एक्सपायरी भी था, 2 नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर भी हुए हैं। सो क्या ये मोमेंटम टेम्परेरी था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से अभी कोई शार्प रिकवरी हुआ है, नो डाउट। गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुला, उसको मेंटेन किया और बाजार ने स्ट्रेंथ दिखा के क्लोज किया हाई पे, डे हाई के पास। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी डाइसी हूँ कि क्या मार्केट यहाँ से कल और पुल बैक करेगा, तो वो मैं अभी डाइसी हूँ। तो इसीलिए मैं एक स्ट्रेटजी पे यहाँ पे अलाउ करूँगा खुद को, माई सेल्फ, कि इस स्ट्रेटजी पे काम किया जा सकता है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। अगर बाज़ार में डे हाई से कोई 100 पॉइंट का डिप आया निफ्टी में, देन वी स्टार्ट बाइंग। अगर डे लो से मार्केट 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया, देन वी स्टार्ट डू सेलिंग फॉर टेम्परेरी 30-40 पॉइंट इन निफ्टी। इफ़ यू कैन सी हियर टुडे, आज भी मार्केट ने कुछ ऐसा ही किया। लेट मी शो यू। अगर मैं एक बार 5 मिनट का कैंडल चार्ट लगा दूं, तो मार्केट यहाँ पे गया, उसके बाद वापस नीचे, फिर वहाँ पे गया, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया। सो मार्केट बेसिकली अंडर सेलिंग प्रेशर होने के बावजूद जो है ऊपर खुला, लेकिन ऊपर खुलने के बाद मार्केट ने वो गैप थोड़ा सा फिल किया और उसके बाद ऊपर गया। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जब मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो वो ऊपर खुलने के बाद भी आपको पैसा दे के जाएगा नीचे, थोड़ा बहुत पॉइंट्स दे जाता होता है उसमें कोई। अगर आप, मैंने आपको पहले भी बोला कि इफ़ यू आर गोइंग ट्रेड विद द ट्रेंड ओनली, देन यू विल रेयरली फेस द फेसेस ऑफ लॉसेस। ठीक है, रेयरली, इट्स नॉट टॉक अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑलवेज। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड काम कर रहे हैं, तो आपको 10 में से 8 कॉल आपका लॉस का ही रहेगा। ठीक है, उसमें रेशो कम रह सकता है, चांसेस। सो द ट्रेंड इज फ्रेंड, डू ट्रेड विद ट्रेंड ओनली। तो मैंने भी आज सेलिंग करके एक बार निफ्टी में 20 पॉइंट 30 पॉइंट का गेन किया अराउंड। सो अगेन फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया बिकॉज मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा था। चलिए एनीवेज, उसको डिस्कशन को ओवर करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। अभी जो बाज़ार में मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 19,230 का, और जो मेजर सपोर्ट लेवल जहाँ से मार्केट ने अभी रिवर्स बैक किया था, पुल बैक किया था, तो वो 18,860 का निकल के आ रहा है। सो अब भी मार्केट, मुझे जो लगता है, वो इसके बीच में ही रहने वाला है। तो क्या बीच में रहने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है, लेट मी शो यू। जिस तरीके से मुझे अभी बाज़ार लग रहा है, राइट, ये हो गया, इसके बाद ये आया, फिर ये गया, फिर मुझे लगता है एक और आ सकता है, फिर उसके बाद वापस ऊपर जाएगा, फिर हो सकता है वापस यहाँ तक आए, फिर हो सकता है उसके बाद ऊपर निकल जाए, फिर हो सकता है उसके बाद यहाँ आए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ जाए। सो उसके बाद मुझे कुछ ऐसा खट्टा मीठा अभी बाज़ार में लग रहा है। आई एम नॉट, आई कांट पुट एनी स्टेटमेंट अपॉन दैट कि सॉरी, यस। सो मुझे ऐसा कुछ बाज़ार अभी लग रहा है। सो ओवरऑल मैं इसीलिए ये अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेजर सपोर्ट, और इसीलिए हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे यहाँ काम करें, पैसा ज़रूर बनेगा, लेकिन बीच में काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। अवॉइड कीजिए बीच में काम करना, बिलीव मी। और इसके अलावा अगर हम RSI की पोजीशन देखें तो इट इज़ नियर अबाउट 41। तो अभी RSI भी यही बोल रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि बीच में काम मत कीजिए, या तो 30 के पास आने दीजिए RSI को, या फिर आप उसको 70 के पार हो जाने दीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ट वे। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट द अपकमिंग लेवल्स ऑफ द निफ्टी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा पॉइंट, और ग्लोबल इंडेक्सेस की हालत देखिए। डाउ जोन्स और नैस्डैक 1.5% के आसपास ऊपर, यूरोपियन मार्केट 1.5% ऊपर बंद हुआ आज। तो मार्केट हो सकता है कल गैप अप फिर से खुले, लेकिन कितना गैप अप खुलता है, लेट्स सी, देखते हैं कितना गैप अप खुलता है, राइट। लेकिन इसी बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरी जो कल की एक्सपेक्टेशंस थी वो कम्प्लीटली रॉन्ग गई, बिकॉज मैंने यहाँ पे बोला निफ्टी ट्रेंड इज़ बेयरिश, सेल ऑन राइज। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, और अपनी हर वीडियो में भी बोलता हूँ,
I never discuss about the huge gap up opening और huge gap down opening. Never. मैं सिर्फ यहाँ पे कंसीडर करके चलता हूँ 25-30 पॉइंट निफ्टी के ऊपर या नीचे खुलने का. मैं कभी भी इस तरीके से डिस्कस करता ही नहीं हूँ. मैंने हमेशा अपनी वीडियो में हमेशा ये चीज़ें रिपीट की है. आज मार्केट 110 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुला तो वो नेचुरली है कि मेरे डिस्कशन में है ही नहीं है वो चीज़. तो मैं अगेन यहाँ पे जो अब कल के लिए लेवल डिस्कस करने वाला हूँ तो उसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ ह्यूज गैप अप खुलना, ह्यूज गैप डाउन खुलना वो मेरे चार्ट इसमें नहीं है स्टडी में. तो मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ फ्लैट मार्केट से पिछली क्लोजिंग के आसपास मार्केट खुलना, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे या फ्लैट खुलना बिल्कुल. तो मैं हमेशा उसी पे डिस्कस करता हूँ. तो लेट्स डिस्कस ऑन दैट. इफ़ मार्केट ओपन गैप डाउन, पहले तो हम देखते हैं निफ्टी का आउटलुक क्या है. सो आउटलुक overall nifty looking I would say in overall nifty looking positive for long term. Short term bearish, so buy on dip, sell on rise. This is the strategy. Now if market open gap down, तो क्या एक्सपेक्टेड लेवल हो सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुले. पहली चीज़ तो ये आज जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट ने 19,451 का फेक हाई बनाया है, आई विल नॉट कंसिडर दैट, राइट. तो मैं करीबन 250 के आसपास ही लेके चलूँगा जो मार्केट में हाई दिखाया. एनीवेज 19,140 का लो, 19 और 240 पे क्लोजिंग दिया मार्केट ने डे हाई पे. तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो तब भी मुझे जो लग रहा है अभी 19,350 का लेवल हायर साइड पे. देखिए हम बात कर रहे हैं, देखिए ये वाला लेवल, ये वाला लेवल. तो अभी निफ्टी कहाँ है 19,130 के पास. तो कल 100 पॉइंट का राइज आ सकता है और वहाँ से सेलिंग बनता है बहुत बढ़िया, बिलीव मी. नीचे डाउन साइड पे एक्सपेक्टेड लोअर लेवल क्या है, एक्सपेक्टेड है 19,190. अगर मार्केट गैप अप खुलता है, सॉरी ये हो गया आपका गैप अप में, गैप डाउन अगर खुलता है तो 19,300 के आसपास लगा देगा. फिर भी ये मुझे जो लग रहा है 19,150 के आसपास नीचे डाउन साइड पे दिखा सकता है. इफ़ मार्केट ओपन फ्लैट देन, अगर मार्केट फ्लैट खुला तो माइट बी रिवर्स बैक. तो हो सकता है, मुझे लग रहा है कि 250 का ही हाई बना रहे. नहीं 250 का तो नहीं, 265 के आसपास का हाई और डाउन साइड पे ये. सो दिस इज़ माई पर्सनल व्यूज़, पर्सनल ओपिनियंस. आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप अपने अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए, स्टडी कीजिए ज़रूर, मिक्स एंड मैच कीजिए चीज़ों को, देखिए कि कहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बाज़ार में, कैसे कहाँ पे आपको स्टडी करके हेल्प मिल सकती है, राइट. So this is all about today. Thank you so much. Keep learning, keep watching my videos. My health is not okay, so I'm just signing off this video session. And if you have any query, any position you are going to carry in Nifty, then please call me at this number or drop me a message if I am not able to respond to you. Thank you so much. Thank you. Have a great day. Bye.